Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to Lecture 12 of amines. So till now we have completed the classification, the the IUPAC nomenclature, the preparation of amines using different class of organic compounds, and we have also talked about the physical and the chemical properties and the factors that affect these properties. Then at last we had completed off with the chemical reactions of amines. So in the last lecture, we were talking about the diazonium salts. So I will quickly revise whatever we did in the last lecture. It's a summary kind of thing for your revision. And then we will start with the second category of reactions. Okay. So I have told you because the aliphatic diazonium salts are also there, but they are very unstable compounds. Okay. And also they are not they are not very industrially um, of a large application. Okay, so that is why we are not interested in the aliphatic diazonium salts. So we are focusing only on the aromatic diazonium salts. Okay, so the first thing was the nomenclature. In naming, we saw that if it is R N2 plus X minus, so the naming would be the alkyl or the not the alkyl group. Okay, it is actually the name of the alkane itself, the parent alkane or the parent, arene group. So I will, plus, you will simply write diazonium for N2 plus the name of the ion. Name of the ion में we saw जो common ions होते हैं, उसमें you have Cl minus, you can write chloride. You have Br minus, you can write bromide. You have HSO4 minus, you can write hydrogen sulfate. And if you have BF4 minus, you can write borofluorate. Fluoroborate. Okay, BF4 minus fluoroborate. So then coming to the preparation. So there we have AR. This is aniline. NaNO2 plus HCl corresponds to the in situ preparation of the nitrous acid, which is HNO2, and the low temperature, which is very important in this case. So finally, we will get AR N2 plus Cl minus with NaCl and water. So this is the preparation method. Then on the chemical reactions, we had first category. That was the first category. Reactions involving the displacement of nitrogen, or you can say substitution of the diazonium group. Okay. इसमें I told you because the diazonium group, which is N2 plus Cl minus or N2 plus X minus, it is a very good leaving group. So that is why it can simply be replaced. It can easily be replaced by the other groups as well, and which will result in the formation of different class of organic compounds. Okay, so I'm not because this is just summarizing happening. So that is why I am not explaining in very detail everything because I have already did it in a previous lecture. I'm just writing the reactions for the revision purpose. So suppose you have, or I can write here X. जरूरी नहीं है कि Cl हो, ठीक है? So if we have Cu2, Cl2 in HCl, then the product would be क्योंकि कॉपर आयन के साथ में क्लोरीन आयन इन्वॉल्व है, so that is why this will be ArCl plus nitrogen gas. Then we have Cu2Br2 in HBr. So because we have this bromine involved with copper ion, so it will be Ar
Br plus N2. If we have the cyanide ion, it is copper cyanide involved with the copper ion in presence of KCN, then we will have this. ठीक है. So these were the three reactions जिसमें कि copper ion was involved. Cu plus 1 ion with the valency 1 was involved. ठीक है. And there was other set जो कि similar results देता है like for bromide and chloride, but in that only copper powder was involved. ठीक है. So differences कि आप मीडियम क्या यूज कर रहे हो, रिएजेंट क्या यूज कर रहे हो. उस केस में कॉपर आयन है और सेकंड केस में कॉपर पाउडर है. ठीक है. हियर दिस इज कॉपर पाउडर विद द हैलोजन एसिड. जो हैलोजन आपको ऐड करवाना है, एंड दिस इज ओनली फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन. ठीक है. आयोडीन और फ्लोरीन के लिए हम आगे देखेंगे. सो क्लोरीन और ब्रोमीन आर ओनली दे कैन ओनली बी prepared using this copper powder. So if you have HCl, then you have ArCl plus N2 and COX, and this X is the ion in the case of the diazonium salt. ठीक है. जो भी आयन डायोजोनियम सॉल्ट में प्रेजेंट है वो कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है. सो दिस एक्स, कॉपर एक्स, रिप्रेजेंट दैट एक्स. एंड इफ यू आर हैविंग HBr, then this will be ArBr plus N2 copper X. ठीक है. एंड ये जो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैंडमियर्स रिएक्शन. ठीक है. और ये जो सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शंस है, इसको वी कॉल इट गैटमैन रिएक्शन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. तो now we will write the reaction for the, if we want to introduce the iodine into the benzene ring. So then we will have Ar N2 plus Cl minus. So for iodine we use potassium iodide. We will get plus N2. So this way we can introduce the iodine. If we want to introduce fluorine, then there's an intermediate also which is being formed in the reaction. So this intermediate is fluoroborate. Okay. This will be arene diazonium. Arene matlab, if it's benzene, then you can call it as benzene diazonium fluoroborate. Okay. So when this intermediate is formed, so on heating, so actually this intermediate is a precipitate. Okay. So precipitate form hota, and when you heat it or increase the temperature, so this is decomposed into benzene chloride. And the byproducts will be, okay. So this was the introduction of iodine and fluorine. Iodine and fluorine. Now, if we want to prepare benzene using the benzene diazonium salt, then what can we do is we can use two reducing agents जो कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को तो रिड्यूस करके बेंजीन बना देंगे, बट दे विल देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. सो दीज टू रिड्यूसिंग एजेंट्स आर H3PO2. it खुद ऑक्सीडाइज होके it has formed H3PO3. and similarly we have ethanol also as a which acts as a reducing agent over here, and ethanol is oxidized to acid, aldehyde. ठीक है. Now if you want to introduce the hydroxyl group, मतलब OH group introduce करने हैं, तो आपको किसी चीज से इसमें रिएक्शन नहीं करवाना है. Simply, if you increase the temperature of the salt solution, of the diazonium salt solution, to around 283 Kelvin, ठीक है, तो अपने आप रिएक्शन हो जाएगा. सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन हो जाएगा. आई एम राइटिंग वाटर ओवर हियर टू इंडिकेट दैट दिस इज अ सोल्यूशन फॉर्म ऑफ डायजोनियम सॉल्ट. ठीक है. तो इवन अगर आप 283 केल्विन पे टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो it will decompose into phenol N2 and HCl. Then if we want to introduce a nitro group, then the reaction would be, this is fluoroboric acid.
जो हमने फ्लोरीन के केस में भी यूज किया है, आप देखो, इन द केस ऑफ सेकेंड रिएक्शन, दिस इज सोडियम नाइट्राइट in presence of copper and heat it. So you will get ArNO2, N2, NaBF4. Okay. So these were the reactions which were involving the the substitution or the displacement of the diazonium group with the other with the other groups. Now we will quickly move on to the next kind of a reaction, which is a B category reactions. So these are the reactions which involve the retention of the diazo group. ठीक है, और इनको हम कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं. ठीक है. So first of all, the mechanism of this reaction is the electrophilic substitution reaction. मतलब कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है and it is substituting the some it is basically substituting the chlorine, the chloride ion Cl minus को substitute करके कुछ वो अपने आप आके लग रहा है उस पोजीशन पे. But the N2 group is retained. ठीक है, पहले केस में क्या था, पूरा रिप्लेस हो रहा था N2Cl. अभी क्या है, N2 ग्रुप इज रिटेन्ड बट दी Cl माइनस में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का. दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नाउ आई विल राइट डाउन द रिएक्शंस फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि रिएक्शन में हो क्या रहा है. ठीक है, तो आई विल ड्रॉ द कंप्लीट स्ट्रक्चर. दिस N प्लस एंड दिस इज Cl माइनस. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज वी आर रिएक्टिंग इट विद phenol. This is phenol in the presence of the basic medium. तो क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन आयन है और ये क्लोराइड आयन और ये जो हाइड्रोजन है. ठीक है, तो बेसिकली व्हेन यू रिमूव दिस हाइड्रोजन, तो जो बाकी का कंपाउंड बच रहा है इन फेनॉल, दैट इज कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग द क्लोराइड, इज अटैकिंग दिस डायजोनियम सॉल्ट, और क्लोरीन की जगह पे वो पूरा अटैच हो जाएगा और H और Cl दे विल बी रिमूव्ड एज HCl. ठीक है, तो H और Cl दे आर बीइंग रिमूव्ड, और जो बाकी के दोनों कंपाउंड्स हैं उनको आपको सिंपली ऐड कर देना है फॉर ड्राइंग आउट द प्रोडक्ट. आपको बस Cl और H को हटाना है और बाकी के दोनों कंपाउंड्स को कंबाइन कर देना है. ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड है अभी तक, लेकिन यू ऑल्सो हैव दिस OH. ठीक है, तो बाकी का पूरा कंपाउंड आपको वैसे के वैसे लगा देना है. सो दिस OH विल बी एट द पैरा पोजीशन एज कंपेयर टू दिस डायजो मतलब N2 ग्रुप विद Cl माइनस, एंड क्योंकि बेसिक मीडियम है तो H प्लस विल गिव H2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो हमारा कंपाउंड फाइनली बन रहा है कपलिंग रिएक्शन में, उसका नाम कैसे रखते हैं, बिकॉज OH इज अटैच्ड एट द पैरा पोजीशन. ठीक है, तो OH को जब हम, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है OH, ठीक है, तो उस केस में वी विल राइट इट एज पैरा हाइड्रोक्सी. पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है इन एजोबेंजीन. ठीक है, तो जो ये पूरा बाकी का पूरा कंपाउंड है हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा के, तो दैट इज नोन एज एजोबेंजीन. ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. Similarly, if the same reaction if you carry out using aniline, this is a diazonium salt and this is the reagent that we are using, it's aniline, and the medium here will be acidic. So similarly इस केस में भी सेम चीज होगी, जो उसका हाइड्रोजन है एनालिन का और डायजोनियम सॉल्ट का क्लोरीन, दे विल बी रिमूव्ड. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बिकॉज पैरा पोजीशन पे अमीन लगा हुआ है, सो वी विल राइट इट एज पैरा अमीनो, और बाकी का कंपाउंड सेम है, सो इट इज एजोबेंजीन. तो वो स्ट्रक्चर, when you have two benzene rings which are separated by N double bond N, that structure is itself called azobenzene. ठीक है, मतलब मैं बात कर रही हूँ ये, if you have this pH plus pH, single bond N, double bond N, and then pH. So if you have this structure, इस पूरी चीज को हम एजोबेंजीन बोलते हैं, और क्योंकि इस स्ट्रक्चर के पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा है, सो दैट इज व्हाई पैरा अमीनो एजोबेंजीन. ठीक है, नाउ you can see that if you see the products, the azobenzenes, they have an extended conjugate system.
because both the aromatic rings, they are on the both the sides, and in between is the end double bond end. So conjugate system, say you can understand it in simpler words as you have alternate single and double bonds. ठीक है, तो अगर you must you have studied कि if there are alternate double bonds in a system, then उसमें conjugation बहुत अच्छा होता है, delocalization of electrons बहुत अच्छे से हो पाता है. ठीक है, delocalization of electron density which basically leads to resonance, that is only caused because of the this alternate double bonds. ठीक है, तो एक रिंग में यू ओनली हैव 3 डबल बॉन्ड्स. ठीक है, बट अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखो आइसोबेंजीन का, तो यू हैव 3 + 3 6 एंड एक बीच में जो कि एन डबल बॉन्ड एन है 7. यू हैव एक्चुअल में 7 डबल बॉन्ड्स एंड दैट टू दे आर इन परफेक्ट ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम. ठीक है, तो इस वजह से ये जो कंपाउंड्स हमारे बनते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ this kind of structure, alternate double bond structure. So, and the compounds which are formed, they are usually colored. ठीक है, तो आप अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन करवाते हो. देयर आर अदर कंपाउंड्स आल्सो जिनसे यू कैन डू द कपलिंग रिएक्शंस, और उनसे भी यू विल गेट द सिमिलर प्रोडक्ट्स. मतलब दिस फंक्शनल ग्रुप कैन चेंज, बाकी का स्ट्रक्चर रिमेन सेम, आइसोबेंजीन वाला चीज सेम रहता है. सो दीज दे आर यूज्ड एज डाइज, मतलब कलर्ड डाइज. तो if I am to write down the, so para hydroxy azobenzene is an orange dye. ठीक है, और this is a yellow dye. So basically these are dyes and they can be used, I mean uh, it is a product that can be used as a dye. So you must also remember that when we were doing in the previous lecture, we were doing the questions conversions. तो उसमें we were talking about the test कि कौन से टेस्ट they can be used to distinguish the different kinds of compounds. तो उसमें I also told you about the azo dye test. So this is the particular reaction I was talking there. ठीक है, तो azo dye test में यही होता है. You can use this test to distinguish the primary aromatic and the primary aliphatic amines. तो आपको अमीन से पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाना है, एंड फिर डायजोनियम सॉल्ट के उसी सोल्यूशन में यू सिंपली हैव टू ऐड दिस रिएजेंट. ठीक है, तो अगर वो एरोमेटिक होगा कंपाउंड सैंपल, इफ इट इज एरोमेटिक देन वी विल गेट द डाई, द कलर डाइज, तो कलर दिखेगा. एंड इफ इट्स एलिफैटिक देन सिंपली नाइट्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एंड फर्दर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. ठीक है, सो देयर वी कॉल इट एज एजोडाई टेस्ट. ठीक है, तो I can mention it over here also. If you are using the एजोडाई टेस्ट देन प्राइमरी तो होना ही चाहिए पहली बात तो. ठीक है, but if it's aliphatic amine, then it will simply liberate nitrogen gas. But if it's 1 degree aromatic amine, और आप ये पूरा एजोडाई टेस्ट करवाते हो सपोज यूजिंग फिनॉल और एनालीन, then you will get colored dyes. ठीक है, so this is about the azodite test. So this is all about the reactions which involve the diazonium salts. So if we talk about the importance of these in the industry, then I have already told you before also कि they are very good intermediates. If we want to introduce several kinds of group in the ring, in the aromatic ring, then we can use different other reagents for the substitution purpose. So that is why they are very good intermediates. Also, I told you कि in the case of chlorine and bromine, ठीक है, the introduction of chlorine and bromine by direct halogenation is possible. ठीक है, if you want to know how, you can directly go to the alkyl halides वाला chapter में, there I have explained it properly. So what I want to say is कि क्लोरीन मतलब क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स बनाना आसान होता है. यू हैव अदर वेज ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सैनमियर और गैटोमैन रिएक्शन देखा, बट इवन इफ यू डू नॉट डू दैट रिएक्शन, you have other ways. But for the case of fluorides and iodides, they cannot be prepared by direct halogenation. ठीक है, तो जो बेस्ट और सिंपलेस्ट वे है for preparing fluorides and iodides, that are using the diazonium salt. And even the cyano group,
the cyanide group, it cannot be introduced by nucleophilic substitution in the chlorobenzene. ठीक है, तो अगर आपको एरोमेटिक साइनाइड बनाना है तो उसके लिए भी द बेस्ट इज यूजिंग द डायजोनियम सॉल्ट. So this was all in the chapter. I mean, we have covered everything that was important. And so I will, do one example related to the diazonium salt, and then we will directly move on to the examples and the questions. Okay, which will these questions, they will involve everything that was covered in the chapter, be it the chemical reactions or preparation, and I will focus on the conversions. ठीक है, जो series वाले reactions होते हैं उनमें. So let's first do an example. So example में you need to convert 4-nitrotoluene. Toluene is CH3 group attached to the benzene ring. ठीक है, to 2-bromo benzoic acid. ठीक है, so how will we go through? अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लेंगे. तो टोलुइन इज एज आई टोल्ड यू CH3 और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है. ये आपको इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में. तो बेंजोइक एसिड विल बी दिस, और 2 पे ब्रोमो है, ब्रोमीन. तो आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये दिख रहा होगा कि इन द प्लेस ऑफ CH3 वी आर गेटिंग COOH. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे CH3 का, व्हेन वी डू द रिगोरस ऑक्सीडेशन यूजिंग द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें डायरेक्टली एसिड मिल जाता है. ठीक है, तो इस केस में हमें सिंपली यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4. वहां पे हमें CH3 कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. बट बिफोर दैट, नो दैट विल बी द लास्ट स्टेप. बिफोर दैट हमें NO2 रिमूव करना है और उसकी जगह पे ब्रोमीन लगाना है. ठीक है, एंड दैट टू एट द डिफरेंट लोकेशन. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज कि बिकॉज हमें ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा एंड NO2 ग्रुप इट इज मेटा डायरेक्टिंग. एल्काइल हाइड्राइड्स क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दे रिलीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम देमसेल्व्स. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्जुगेशन द ब्रोमिनेशन कैन टेक प्लेस आइदर एट द ऑर्थो और द पैरा पोजिशन. ठीक है, बट द पॉइंट हियर इज कि पैरा पोजिशन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व. तो हम कह सकते हैं कि पैरा पोजिशन प्रोटेक्टेड है. अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इस कंपाउंड का, तो पैरा पोजिशन पे NO2 होने की वजह से ओनली ऑर्थो पोजिशन विल गेट द ब्रोमीन आयन. ठीक है, तो इस वजह से आवर फर्स्ट स्टेप विल बी द ब्रोमिनेशन. तो ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमीन लग जाएगा एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो I will write down the series. ठीक है, so first step what we will do is bromination. NO2 group will still be there, and ortho position will get the bromine atom. ठीक है, now what we need to do is bromine तो attach हो गया. Now we need to remove this NO2 group, क्योंकि पैरा पोजिशन पे हमारे प्रोडक्ट के पैरा पोजिशन पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो इसको हटाने के लिए द सिंपलेस्ट थिंग इज बेसिकली वी कैन से कि हमें यहाँ पे H रिप्लेस करना है. ठीक है, जैसे हम व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डायजोनियम सॉल्ट, तब उसमें हमने देखा था कि इफ वी वांट टू, मतलब अगर N2Cl AR से इफ वी वांट टू गेट ARH. ठीक है, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, N2Cl को रिमूव हो रहा है. ठीक है, N2Cl रिमूव हो जा रहा है एंड वी आर सिंपली गेटिंग द एल्केन अरीन. ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है. तो इसको NO2 को पहले हमें डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उससे पहले डायजोनियम सॉल्ट से पहले वी वांट NH2 अमीन. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली रिड्यूस इट. व्हेन यू यूज द रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक मेटल in HCl, ये भी when we were talking about the preparation of amine using the nitro compound. ठीक है, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि we can use reducing agents like metal in the acidic medium. तो ये वही वाला मेथड है. इसमें क्या होगा, आपका जो बाकी का कंपाउंड है दैट विल बी एज इट इज, और NO2 की जगह NH2 लग जाएगा, दैट्स इट. ठीक है, तो यहाँ पे दिस रिएक्शन involves the knowledge of preparation of amine.
नाउ अब आपको NH2 को N2Cl में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली द इन situ preparation in HCl and temperature is also important, ठीक है? इस केस में भी द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एंड द ग्रुप्स विल बी अनअफेक्टेड, ठीक है? अब हमें N2Cl को कन्वर्ट करना है, मतलब बेसिकली वी नीड टू रिप्लेस दिस बाय हाइड्रोजन। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी विल यूज द रिड्यूसिंग एजेंट अगेन, ठीक है? जो कि हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, वन वाज H3PO2 and the other was ethanol. So we can use any one of them. It will act as a reducing agent, ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है? N2Cl की जगह पे, मतलब बेसिकली N2Cl रिमूव हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है? और अब हमें क्या करना है? इसको ऑक्सीडाइज कर देना है लास्ट स्टेप में। तो ये जो CH3 है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH एंड दिस इज ब्रोमीन, ठीक है? सो दिस इज अ कंप्लीट चेन फॉर if you want to convert, if you want to carry out this conversion. तो यू कैन सी कि हमने कितना डिफरेंट रिएक्टेंट से कितना डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है? इफ वी so that is why this N2Cl, these diazonium salts are very important. Now we will, as I told you, we will now move on to the conversions, and I will, I have tried to incorporate all the kinds of preparations and the chemical reactions, and obviously other class of the reactions which are also there in other chapters, other organic compounds, they are also involved. Okay, so it might be that you have forgotten, or you are not aware of a particular reaction. तो उसको भी आप देख सकते हो. Carry out following conversions. ठीक है? So the first one says you have to convert ethanoic acid to methanamine. ठीक है? So so when you see this question, the first thing that should come to your mind, ठीक है, is कि जो हमारा reactant है that is ethanoic acid. इसका मतलब it is having two carbon atoms. But हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज methanamine. It is having only one carbon atom. It's an amine. ठीक है? तो इसका मतलब है बीच में कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, कोई ऐसा स्टेप है रिएक्शन में, दैट इज डिक्रीजिंग वन कार्बन एटम, ठीक है? और तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो अमीन है। इसका मतलब देयर विल बी द लास्ट स्टेप शुड बी द प्रिपरेशन ऑफ अमीन, ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन में ऐसा कौन सा स्टेप होता है? दैट इज बेसिकली रिड्यूसिंग द डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बाय वन, ठीक है? तो उसमें यू मस्ट, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दैट वी टॉक्ड अबाउट द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है? यू सिंपली रिएक्ट द अमाइड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, उसमें ब्रोमीन भी इन्वॉल्व है और अमाइड भी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो अमाइड से जो CO ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, CO वाला ग्रुप, वो रिमूव हो जाता है एंड यू फाइनली गेट द अमीन, ठीक है? तो हम वही वाला स्टेप यहाँ पे यूज करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज वी फर्स्ट नीड टू प्रिपेयर अमाइड यूजिंग द इथेनोइक एसिड, ठीक है? तो मतलब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव प्रिपेयर करना है, ठीक है? So there are many ways of preparing the derivatives using the carboxylic acid, and I when we were doing the chapter involving the chemical reactions of carboxylic acid, we discussed this reaction. ठीक है? तो हम पहले SOCl2 से क्लोरीनेशन करवाएंगे, सो एसिड क्लोराइड बनेगा, और फिर अमोनिया से अमाइड बनवा देंगे। So I'm writing down the reaction. This is ethanoic acid when you use SOCl2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? एक दूसरा डेरिवेटिव बनेगा विच इज COCl. दिस इज द एसिड क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है? देन we will react this with ammonia and Xs. तो इस चीज से we will get amide, which is also a derivative of carboxylic acid. Now
तो दिस इज अमाइड। तो अब हमें क्या करना है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगाना है। उससे क्या होगा, वी विल गेट द अमीन एंड दैट टू विद 1 कार्बन एटम लेस। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में यू हैड ब्रोमीन इन NaOH। ठीक है, और आई एम ऑल्सो राइटिंग द नेम, तो our final product would be CH3NH2। ठीक है, so which is methenamine, which is the desired product। Similarly, the second question says we have to convert हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, तो हेक्सेन मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, हेक्सेन इज नॉर्मल एलिफैटिक हेक्सेन। तो हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देखो सेम चीज हो रही है। हेक्सेन है जो हमारा रिएक्टेंट है, दैट इज हैविंग एक्चुअली में 6 कार्बन एटम, एंड हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज हैविंग ओनली 5 कार्बन एटम्स, एंड दैट आल्सो दैट इज अ अमीन। ठीक है, तो हेक्सेन नाइट्राइल कैसा होता है, इट्स नाइट्राइल इज बेसिकली द साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो that will be 1 carbon will be counted in the cyanide group itself, and there will be other 5 carbon atoms cyanide। तो बाकी पूरी नॉर्मल अल्काइल चेन है, एलिफैटिक चेन, एंड देन वी हैव CN। so this is hexane nitrile। so now you need to convert it to 1 amino pentane। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या करना है, if you want to remove this carbon atom, so we will also use Hofmann bromide in this case। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि इस CN को डायरेक्टली हम अमाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास अगर एसिड होता है तो अच्छी बात होती है, आइदर वी आर गेटिंग एसिड क्लोराइड और एसिड। ठीक है, तो वी कैन यूज अ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म द अमाइड। तो अब CN से देयर इज अ रिएक्शन ऑफ सिंपल, you can simply do the hydrolysis। so you can find this reaction in the preparation of carboxylic acid। ठीक है, तो वहां पे वी हैव सीन कि हाउ कैन वी प्रिपेयर अ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग द नाइट्राइल ग्रुप। ठीक है, तो उसमें हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं एसिडिक मीडिया में। तो दिस CN ग्रुप विल कन्वर्ट टू COOH ग्रुप। ठीक है, फिर हमने जो ऊपर किया था वही सिमिलर चीज करेंगे। फर्स्ट COCl, देन वी विल यूज अमोनिया टू फॉर्म अमाइड, एंड वी आर यूजिंग Br2 in NaOH टू रिमूव दिस CO ग्रुप। ठीक है, तो ये CO ग्रुप हट जाएगा तो हमारे पास पेंटेन और अमीन बचेगा, विच इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट। वी हैव C5H11 with NH2। this CO has been, ये वाला CO has been removed। ठीक है, so this is 1 amino pentane। now similarly we have third question। it says we have to convert methanol to ethanoic acid। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप the reactant is methanol with the 1 carbon atom and the product is ethanoic acid with 2 carbon atom। ठीक है, तो इसका मतलब we have to include a reaction, a step in the series that involves the increment by 1 carbon atom। मतलब एक कार्बन एटम बढ़ रहा है। ठीक है, तो कार्बन एटम बढ़ाने का जो बेस्ट टेक्निक होता है दैट इज यूजिंग द साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप से आप एक कार्बन एटम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप साइनाइड ग्रुप अटैच करवा रहे हो तो ऑलरेडी सपोज करिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, एंड इफ यू आर सिंपली you are having the halide of that compound and you react it with NaCN, तो वो हमारा CN ग्रुप अटैच कर देगा, तो CN में एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा, एंड देन यू कैन मेक वट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि वी हैव मिथेनॉल विच इज CH3OH। ठीक है, तो हमें सबसे मतलब CN को अटैच करवाने के लिए वी नीड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हैलाइड बनाना पड़ेगा। हम ये अल्कोहल से डायरेक्टली CN अटैच नहीं कर सकते, तो वी विल यूज, आई मीन इट्स नॉट क्लियर, आई रीराइट इट, दिस इज PCl5। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में व्हेन वी वर डिस्कसिंग, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड यूजिंग अल्कोहल। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था SOCl2 और PCl5, इनसे रिएक्शन देखा था, एंड द प्रोडक्ट वुड बी CH3
Cl. Now, when you use NaCN here, and that too in ethanolic medium. ठीक है, medium is also important. Ethanolic medium, then simply this CN will be attached, मतलब the Cl group will be replaced by CN. ठीक है, अब आपके पास एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम आ चुका है, अब आपको इसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करवाना है। तो जो हमने जस्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन में किया था कि वी कन्वर्टेड दिस नाइट्राइल ग्रुप टू एसिड यूजिंग दी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। वी विल डू द सेम थिंग ओवर हियर। ठीक है, दिस विल बी CH3 COOH, दिस इज द इथेनोइक एसिड। तो आप यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व यू कैन सी कि जो हमारा साइनाइड ग्रुप है CN, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हमें भले इफ यू वांट टू डिक्रीज द कार्बन एटम, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें साइनाइड ग्रुप को हटाना है। ठीक है, तो हम साइनाइड ग्रुप को यू हैव सीन इन द सेकंड एग्जांपल कि साइनाइड ग्रुप को हटा कैसे सकते हैं। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट टू अमाइड। और अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो भी आप साइनाइड ग्रुप यूज कर सकते हो। आप साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाओ यूजिंग अल्काइल हैलाइड, एंड देन फाइनली when you have the cyanide group, then you can use other ways to prepare the desired compound. So the next question says you have to prepare ethanamine. Sorry, you have to form methanamine with ethanamine. मतलब यहाँ पे भी आपको एक कार्बन कम करना है कंपाउंड में। ठीक है, so I mean if you want to reduce it, and both are amines by the way, ठीक है, तो इसका मतलब you simply have to remove CH2 from the compound. तो इस केस में you also have, because in the case of amines अगर आपको कुछ कम या ज्यादा कुछ करना है, so you can use, if you want to reduce one carbon atom, you can simply use Hofmann bromamide. ठीक है, that's the best way. ठीक है, तो उस केस में आपको अमाइड चाहिए होगा। ठीक है, और अमाइड्स के लिए यू नीड द एसिड। फिर आप मतलब एसिड से डायरेक्टली आप अमाइड बना सकते हो। ठीक है, तो आपको अमीन से एसिड बनाना है। ठीक है, तो इन दिस केस बिकॉज आपको हेलाइड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और अमीन्स में हमने देखा था कि यू कैन इंट्रोड्यूस अ डायजोनियम सॉल्ट, और वहां से वी कैन गेट अल्कोहल्स। ठीक है, जब आप उनको व्हेन यू हीट इट टू द हायर टेम्परेचर्स, इवन टू 283 केल्विन, ठीक है, तो वो अपने आप डिकम्पोज कर जाएंगे डायजोनियम सॉल्ट, और वो हमें अल्कोहल दे देंगे। ठीक है, सो बिकॉज इट इज एन एलिफैटिक अमीन, तो हम एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और हमने जो व्हेन वी रिएक्टेड विद HNO2 द नाइट्रस एसिड, तो वहां से हमें N2Cl मिलेगा, एंड बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल फॉर द एलिफैटिक केस, इट विल डिकम्पोज इनटू अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एलिफैटिक है, इस वजह से हम एरोमेटिक वाले केस पे नहीं जाएंगे। ये अपने आप ही अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं तो वो अपने आप हमें अल्कोहल देगा, एंड देन यू कैन oxidize the alcohol to get the acid. So this will be a bit lengthy क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा स्टेप्स हैं। तो दिस इज CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन situ preparation of N2Cl। तो बिकॉज दिस इज एलिफैटिक और हम रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर में नहीं करवा रहे हैं, so that is why we will like in the aliphatic we do not do the reaction at the lower temperature, so this is a very unstable compound. It will automatically decompose into alcohol with the liberation of nitrogen. ठीक है, तभी तो हम लोगों ने we were using this as a test for the identification of primary aliphatic compounds, और यहाँ पे हमारे साथ नाइट्रोजन भी निकलेगा क्योंकि ये गैस है तो ये लिबरेट हो जाएगा। नाउ यू हैव गॉट द अल्कोहल। ठीक है, तो आप इसको सीधा ऑक्सीडेशन करिए KMnO4 से, and in the acidic medium you will get the acid, and that acid is CH3COOH। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फॉर्म दी अमाइड, क्योंकि हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवाना है। ठीक है, तो आप अमोनिया से रिएक्शन करवाओ,
we will form the CH3, CO, NH2, and then you have the degradation, Br2 in NOH. तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और फाइनली हमारे पास CH3, NH2 और मीथेनामाइन इज लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका conversion. Now the next question is ethanoic acid to propanoic acid. So basically this conversion tells you how can you increase the carbon atom in the case of the acid. ठीक है, पहले वाले में क्या था, हम अमीन्स का चेन मतलब अमीन्स में कार्बन आटम कम कर रहे थे, अब वी आर डूइंग इट विद द केस ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कार्बन आटम। सो एज आई टोल्ड यू, अगर हमें कार्बन आटम को बढ़ाना है एक से, तो यूजिंग साइनाइड इज द बेस्ट वे। ठीक है, अगर आपको एक कार्बन आटम बढ़ाना है तो आप मतलब यू डोंट नीड यू देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। आप किसी तरीके से साइनाइड इंट्रोड्यूस करो और फिर उसका ऑक्सीडेशन या फिर सॉरी हाइड्रोलाइसिस करवा दो। ठीक है, तो आपको पहले यू नीड टू कन्वर्ट दिस इथेनोइक एसिड टू साइनाइड। तो व्हाट विल वी डू इज, क्योंकि साइनाइड लेके आने के लिए हमें पहले अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एसिड से हैलाइड बनाना है। सो सी व्हाट आई एम डूइंग इज, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करवा देंगे LiAlH4 and you know the if if you are using LiAlH4 then your second step should be the acidic hydrolysis। ठीक है, हमेशा ऐसे ही यूज करना है, सिर्फ LiLH4 काम नहीं करेगा, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इट विल इट डू, CH3 एसिड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज अल्कोहल। नाउ यूजिंग अल्कोहल आप आराम से हैलाइड बना सकते हो यूजिंग SOCl2 और PCl5। फिर यू कैन यूज NaCN, इथेनॉलिक। तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह CN विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग बार बार हैलाइड से साइनाइड बना रहे हैं, नाइट्राइल बना रहे हैं। ठीक है, सो बट दिस इज सो इजी बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, यही चीज अगर हमें एरोमेटिक में करनी होती है तो हम लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा पाते, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि इफ वी आर डीलिंग विद एरोमेटिक कंपाउंड्स तो और अगर हमें साइनाइड इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एलिफैटिक में इट्स सो इजी। ठीक है, एक स्टेप में सीधा आप NaCN से इथेनॉलिक NaCN यूज करिए और आपको एलिफैटिक नाइट्राइल मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस विद द एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यू हैव गॉट द CH3 CH2CN और सिंपली आपको इसको एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप नो सिंपली हाइड्रोलिसिस। ठीक है, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड विद 3 कार्बन एटम्स। तो आपने देखा कि अगर हमें एक कार्बन एटम को असेंड करवाना है या फिर डिसेंड करवाना है तो हम लोग किस तरीके से जा सकते हैं। ऑल दीज कन्वर्जन, ऑल द 5 कन्वर्जन देवर they were involving these things only। ठीक है, and these types of questions are very frequent in the examination also। So this was all for today, and tomorrow like in the next lecture we will do several other questions and the reactions।